Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear students, we are discussing Sir Alexander Fleming, our hero number 3 of book 2, chapter number 13, written by Patrick Pringle. Sir Alexander Fleming was a Scottish bacteriologist who discovered penicillin, and he was given the title of Sir for his discovery of penicillin. We have discussed about aseptic method, we have discussed about Joseph Lister, we have discussed about the early life or biography of Sir Alexander Fleming, we have discussed Louis Pasteur and his discoveries. Today we shall discuss about the Sir Alexander Fleming's discovery of natural antiseptic. Fleming, now 37, went back to St. Mary's and continued research, and in 1922 he discovered an antiseptic, not a chemical like carbolic acid but a natural antiseptic manufactured by the body. He made the discovery by what he modestly called an incident. He was suffering from catra and began to examine his own nasal secretions. Catra is a disease of bronchitis. It's like something asthma and asthmatic diseases can be called catra. Actually, these are some secretions produced by our body, produced by lungs, and in these secretions he discovered a substance that destroyed microbes on the culture plate. He called it lysozyme. Before the discovery of penicillin, he discovered lysozyme. It was a step towards the discovery of penicillin. Lysozyme proved to be little practical use in the treatment of disease, but the discovery was of considerable importance, for it was the forerunner of penicillin. Forerunner, F-O-R-E-R-U-N-N-E-R, forerunner means predecessor, forebearer, ancestors. Lysozyme was not a chemical but a natural antiseptic, and unlike chemical antiseptic, it destroyed germs and yet had no harmful effects on the leukocytes. It was in fact the first antiseptic discovered that was harmless to the cells of body. Penicillin was the second. First antiseptic which was discovered to be harmless to the cells of body was known as lysozyme. The other antiseptic, which is major antiseptic and still being used in the whole universe, in the whole world, is called penicillin. Now students, now we are using the 4th or 5th generation of penicillin. The discovery of lysozyme did not bring Fleming popular fame, but it raised his position in the world of science. The medical profession began to pay more attention to what he said, and at this time he had quite a lot to say on the subject that had occupied his mind ever since the First World War. Chemical antiseptics were fashionable again, and the Fleming once more reminded doctors of the greater importance of the natural defenses of the body. Now we will discuss his appointment as the professor of bacteriology in 1928 in the University of London. In 1928, Fleming was appointed as the professor of bacteriology in the University of London, and in the same year he hit on. Hit on means to discover, to catch on. He hit on penicillin. The discovery of penicillin was made in 1928. This is point you need to remember. आपने ये बात याद रखनी है कि 1928 में, यानी कि 1928 में
पेनिसिलिन डिस्कवर की गई थी। इससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के, अगर हम बैकग्राउंड में देखें, पस मंज़र में देखें, तो वाउंड्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए, बॉडी का नेचुरल डिफेंस मेंटेन करने के लिए जो चीज़ जो थी वो लाइसोजाइम थी। वो बड़ी प्रैक्टिकल यूज़ की साबित हुई थी। तो आप ये कह लें कि पेनिसिलिन जो थी इट वाज फोर रनर ऑफ, एक्चुअली लाइसोजाइम वाज द फोर रनर ऑफ पेनिसिलिन, यानी कि पेश रो कह लें, जो पेनिसिलिन का पेश रो थी वो लाइसोजाइम थी। आज जितनी भी मेडिसिन यूज़ की जा रही है, जितना भी डॉक्टर जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, वो सबसे पहली जो आप कह लें कि डिस्कवरी थी वो पेनिसिलिन की थी। उससे पहले जो थी सबसे पहले लाइसोजाइम आया। लाइसोजाइम हमने डिस्कस किया है कि उसने कैसे डिस्कवर किया था। उसको कैटरा की बीमारी हुई, जिसको हम उर्दू में केरा भी कहते हैं, बलगम भी कहते हैं। एक्चुअली दीज आर नेज़ल सिक्रीशंस प्रोड्यूस्ड बाय आवर लंग्स। तो इससे क्या हुआ था कि उसने अपनी सिक्रीशंस का उनका एग्जामिन किया, एंड दीज सिक्रीशन ही डिस्कवर्ड अ सब्सटेंस। उसने देखा कि इन सिक्रीशंस में, इस रतूबत में एक मादा होता है दैट डिस्ट्रॉयड माइक्रोब्स ऑन द कल्चर प्लेट, जिसने माइक्रोब्स को, छोटे छोटे जो जरासीम होते हैं, उनको उसने किल किया, डिस्ट्रॉय किया, तबाह किया। तो इस चीज़ को उसने लाइसोजाइम का नाम दिया था। द फ्रेज इन हिज ओन, हमने पढ़ा कि इन द सेम ईयर ही हिट ऑन पेनिसिलिन। ये जो हिट ऑन का वर्ड यूज़ किया है, इट मीन्स टू डिस्कवर। ये फ्रेज़ उसने ख़ुद बनाया था, ये उसका अपना फ्रेज़ था, उसका अपना एक सेंटेंस था, एक आइडिया दिया था। उसने डिस्कवरी का वर्ड यूज़ नहीं किया, उसने कहा हिट ऑन। हिट ऑन मतलब कोई बात सूझना, किसी बात का ख्याल आ जाना, कैच ऑन, जैसे कहते हैं ही कॉट, द आइडिया वाज कॉट ऑन। द फर्स्ट स्टेज इन डिस्कवरी ही सेज was due to a stroke of good fortune। यार ये जो इस डिस्कवरी में सबसे पहला स्टेप जो था वो अच्छी किस्मत का होना था। ये एक अच्छी किस्मत की अता थी, बट ओनली द फर्स्ट स्टेज, लेकिन इसकी पहली जो स्टेज थी वो ही एक अता थी। उसके बाद उसको काम करना पड़ा। लेट्स सी द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। इस चीज़ तक पहुंचने के लिए हमने इतना पढ़ा, इस पूरे चैप्टर को पढ़ा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, आप कह लें कि स्कैनिंग अगर हम इस चैप्टर की करें तो डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन है। एंड हिज लेबॉर्ट्री एट सेंट मैरीज ही वॉज कैरिंग आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन द कॉमन जर्म्स कॉल्ड स्टेफिलोकोकस। ही वॉज ग्रोइंग colonies of germs on plates spread with agar. The plates were kept covered, but to examine them under a microscope, he had to take the covers off. एक सेंट मैरीज लेबॉर्ट्री, जो कि एक आम सी लेबॉर्ट्री थी, वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। यूएसए की, फ्रांस की लेबॉर्ट्रीज का अगर इसके साथ कंपैरिजन किया जाए तो आप कह लें कि कोई भी कंपैरिजन नहीं था इसका उन लेबॉर्ट्रीज़ के साथ जो कि एयर टाइट लेबॉर्ट्रीज़ थी। तो सेंट मैरीज जो लेबॉर्ट्री थी उसका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं था, इट वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। तो वो कल्चर प्लेट पे जर्म्स को जो थे, दोज जर्म्स वर कॉल्ड स्टेफिलोकोकाई। स्टेफिलोकोकस सिंगुलर है, स्टेफिलोकोकाई प्लूरल है। वो स्टेफिलोकोकस को डिस्कस कर रहा था, उनको स्टडी कर रहा था। तो क्या हुआ, एज सून एज यू ओपन अ कल्चर प्लेट, जैसे उसने उसको अनकवर किया, उसको ढांप रखा था उन कल्चर प्लेट्स को, जिस पे वो जरासीम को, जर्म्स को, स्टेफिलोकोकस को स्टडी कर रहा था। जैसे उसने उनको अनकवर किया, ही सेड आफ्टरवर्ड्स, यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, आप मुसीबत को बुला रहे हैं। आप बैल मुझे मार वाली बात थी। थिंग्स ड्रॉप फ्रॉम द एयर। एक्चुअली ये जो लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं वो एयर टाइट होती हैं, बाहर से कोई मोल्ड स्पोर्स जो हैं, पॉलन्स जो हैं, वो नहीं आके ड्रॉप हो सकते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, कहता जैसे ही आप कल्चर प्लेट को ओपन कर देते हैं तो आप यू आर आस्किंग फॉर द ट्रबल, आप मुसीबत को खुद दावत दे रहे होते। थिंग्स मे ड्रॉप फ्राम एयर, फ़िज़ा से चीज़ें जो हैं उस पर आके गिर सकती हैं। वन ऑफ दीज बिट्स ऑफ ट्रबल हैपन टू बी पेनिसिलिन। ये छोटी छोटी मुसीबतें थी,
उनमें से एक जो फ़ायदा हुआ वो पेनिसिलिन बन गई। हुआ क्या, कल्चर प्लेट्स ओपन हैं, अनकवर्ड हैं, ए मोल्ड स्पोर कमिंग फ्रॉम आई डोंट नो वेयर ड्रॉप्ड ऑन द प्लेट। मोल्ड स्पोर्स जो थे, फफूंदियाँ थीं, जो पोलन्स थे, बीज छोटे छोटे जरदानी, वो फ़ज़ा से पता नहीं कहाँ से आए और उसके ऊपर आके गिर गए। प्रिजूमेबली, गालिबन, शायद, परहैप्स, द स्पोर ऑफ द मोल्ड और फंगस was blown in through the windows. It may have come from the larder of a forgetful Paddington housewife, for his particular mold commonly breeds on damp bread, cheese and preserves. कहता है ये एक ऐसी चीज़ थी जो किसी एक भुलक्कड़ हाउसवाइफ, पैडिंगटन की जो हाउसवाइफ हो, उसके घर में जो पड़ी हुई रोटियां हों, जो गीली जगह पे पड़ी हुई हों, चीज़ हो जिस पे फफूंदी लग जाती है, जिस पे फंजाई लग जाती है, एंड प्रिजर्व्स, और उसकी बचाई की जो चीज़ें थी, ऐसी औरत जो कि फोगेटफुल हो, भुलक्कड़ हो, तो वहाँ से उड़ता हुआ कोई जरासीम फ़ज़ा से होता हुआ उस कल्चर प्लेट पे आके गया। इट ग्रोज बेस्ट व्हेन द कंडीशंस आर कूल एंड डैम्प, एंड द समर ऑफ 1928 वाज वेरी कूल एंड डैम्प। 1928 का जो समर था वो कूल था और डैम्प था। डैम्प मीन ह्यूमिडेट था, वहाँ पे मरतूब था, यानी कि ह्यूमिडिटी थी फ़ज़ा में। हैविंग सेटल्ड ऑन द कल्चर प्लेट, द मोल्ड began to grow and the almost once microbes around it began to disappear. ऐसा हो जैसे हुआ कि सेटल हुआ तो जो जर्म्स थे, माइक्रोब्स जो थे, वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो गया। फ्लेमिंग पुट असाइड द वर्क ही वॉज डूइंग एंड बिगैन टू इन्वेस्टिगेट। उसने जो काम वो कर रहा था उसको एक साइड पर रखा और तहकीक शुरू की। ही मेड अ प्योर कल्चर ऑफ द मोल्ड एंड ट्राइड इट्स इफेक्ट ऑन अदर बैक्टीरिया। सम grew right up to the others, like the staphylococci, stopped short, inhibited by his antibacterial action. The next step was to produce the antibacterial substance free of the mold. Fleming did this by plating the mold on a meat broth. Meat broth मतलब गोश्त की यखनी. It grew on the surface of felt like mass and turned the broth yellow. After weeks, growth and fluid was strained through a fine filter and tested for its antibacterial properties. The results were favorable as before, and Fleming knew that he had discovered another natural antiseptic with far greater possibilities than lysozyme. He called it penicillin. उसने जो चीज़ बनाई उसको पता चला कि ये लाइसोजाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है, ज़्यादा अहमियत की हामिल है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो ग्रेटर हैं, तो उसने उसको पेनिसिलिन का नाम दिया। Now we will discuss the effects of penicillin. Further experiments showed that in its effects on germs like staphylococci, penicillin was about 3 times as strong as carbolic acid. जब हम इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो स्टेफलोकोकाई पर जो कि जर्म्स होते हैं उन पर पेनिसिलिन का जो असर था वो कार्बोलिक एसिड से 3 गुना ज़्यादा था। What was far more important was that unlike carbolic acid and all the other chemical antiseptic, it had no toxic effect at all on leukocytes. इसका जो दूसरा बड़ा इफ़ेक्ट आप ये देख लें कि अनलाइक कार्बोलिक एसिड के ब्रक्स, ऑल अदर केमिकल एंटीसेप्टिक्स, जो भी दूसरे केमिकल एंटीसेप्टिक्स उस ज़माने में यूज़ होते थे, जो भी जरासीम कुछ चीज़ें यूज़ होती थी, इट हैड नो टॉक्सिक इफ़ेक्ट एट ऑल ऑन ल्यूकोसाइट्स. इसका जो ल्यूकोसाइट्स जो थे, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, उन पर कोई भी पॉइजनस जहरीला असर नहीं था. Our last point is Oxford team and concentrating the penicillin. Meanwhile, a fresh attempt had been begun to solve the problem of concentrating penicillin. अब प्रॉब्लम ये आया था कि पेनिसिलिन जो थी उसको कंसनट्रेट कैसे करना है, उसको गाढ़ा कैसे करना है. इट वॉज मेड एट एक्सपर्ट टीम बाय अ टीम हेडेड बाय प्रोफेसर नाउसर. ही वॉज प्रोफेसर. उसके बाद उसको टाइटल दिया गया, खिताब दिया गया सर का, हॉवर्ड फ्लोरी एंड डॉक्टर ई बी चेन.
The Oxford team included trained chemists as well as bacteriologists and had all the equipment that Fleming had lacked. उनके पास तमाम वो चीज़ें थी, तमाम वो equipments थे, तमाम वो साजो सामान था जो कि Fleming के पास नहीं था. Yet it was a long, hard struggle before they succeeded in producing a practical concentration of penicillin. 1928 में डिस्कवर हुई. 1941 में यानी कि 1941 में द फर्स्ट ह्यूमन केसेस वर ट्रीटेड इन 1941 एंड प्रॉब्लम देन बिकेम अ मैटर ऑफ प्रोडक्शन. उसके बाद इसकी जो प्रोडक्शन थी वो शुरू हो गई. 1941 में इस टीम ने इसको आके कंसंट्रेट कर लिया था. वन ऑफ द एक्सपर्ट टीम्स वेंट टू अमेरिका where new methods of manufacture were discovered, and in 1943 penicillin reached the English army in Egypt. In the words of Viscount Montgomery of Almenian, the healing of war wounds was revolutionized. Penicillin arrived just in time to save countless lives. It was easily the strongest weapon yet forged in the fight against disease. Next topic, next major point of this chapter will be discussed in next video. Allah Hafiz.